New Delhi, the capital of India, has been given an independent state, a home to 8.6 million people from all over the country. Today, it is the center of Indian administration and a lot of development. This city is considered to be one of the most bustling cities in the country. Delhi has gained heights of advancement and a modern lifestyle. Some here enjoy a high-end and luxurious life with countless facilities, decorated houses, and lead an attractive living. Everything here is growing fast. The city life is captivated by busy roads with motor vehicles rushing, hurried pedestrians crossing the road. But, but seldom we take a look at the road behind. It's highly surprising that according to a survey conducted in 2009, 52% of Delhi's population dwells in slums. We say that Delhi is one of the 6 largest metropolises of the world, but still 1/3 of the Delhi's residents are part of slums, with no basic resources like clean water or basic food. More than half of the city's population live in urban slums with inadequate provision of basic services. Forces of poverty and employment opportunities and the struggle of these people are reflected from their faces because there is a great lack of employment opportunities in our country. About 69% of the women living in the slum areas are said to be undernourished. The poor children here don't even have the right to gain proper education and schooling, which is spoiling the future of these little buds. Rather, they are more exposed to the dirt, which is putting them into great danger. They have to work hard to find the leftovers in the heaps of the garbages, while some of them has taken labor as their duty. स्कूल के बाद क्या करते हो? स्कूल के बाद क्या करते हो आप लोग? घर आने के बाद खेलते कहाँ हो? यही चलते हैं, यहीं पर खेलेंगे। जगह यही है तो क्या करें? A survey says that only 31% of the Indian population has an access to toilets, while the rest have to do so in the open spaces. There are no proper sanitation facilities and no sewage systems. Water and sanitation here is a critical issue. This railway track is a bathroom to the families in and around the slums, as there are no bathrooms situated in the slum. To get a more detailed information on the living of these people, we interviewed a few families of the slum. A live reporting here by GIDF, an IPM initiative from Masoodpur slum. My name is Aloknath Jaiswal and I am here to conduct a survey along with my team, which consists of Yamini Nainwal, Jyoti Tripathi, Nikhil Dudeja and Sakshi Sharma. As we've just seen, Delhi slums are getting more populated, and we are here to conduct a survey on the looking at the lifestyle, how the people are having the misery, trouble and the kind of problems in their life. We are here to have a check and provide our views on that. Thank you. लकड़ी का काम करते हैं। ये आप मतलब आपको इसमें कितना पैसा मिल जाता है? महीने का 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये आपके लिए बहुत है जीने के लिए, बहुत है जीने के लिए। और आपको और एक बात बताओ,
ये जैसे हमारा वो बदलता है सीज़न, जैसे सर्दी आ गई, गर्मी आ गई या बारिश आ गई, इन सब से कैसे बचते हो और कैसे? लोग देखो दिन भर तो रहता हूँ साइड पे काम करता, फिर रात भर रहता हूँ। मतलब रात को भी फिर सर्दी से कैसे बचते हो और बारिश आ जाए, कोई दिक्कत विक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत। बारिश आएगा तो घर में थोड़ी आपके यहाँ पे जो है इतना गर्मी वगैरह दिख रहा है तो आप सैनिटेशन वगैरह कैसे टॉयलेट वगैरह यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो ऐसी है ना, झुकी झोपड़ी है, कहीं से नहीं आएंगे। मतलब इससे तो कितनी बीमारियाँ होंगी, जैसे पानी वगैरह रुका हुआ है। तो ये सरकार को देख लेते हैं ना, हम लोग क्या करें, जितना होता है उतना करते हैं, कमाते हैं, हम बस क्या होता है। नहीं, कुछ नहीं करते। सरकार तो ऐसे ही आते हैं, बस छूट लेते चले नहीं जानते। तो अगर ऐसे कोई बीमारी हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करें, गरीबी का है ही यही हाल, डॉक्टर इलाज करें। हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं, पैसे खर्च करने पड़ता है, फिर उसके बाद पैसे खर्च करो तो उतना सही हो जाता है। और जो पैसे नहीं कर पाते हैं वो ऐसे मरे या जिए, उसका कोई इलाज नहीं है। वैसे इसका उसका ठीक है, नहीं है पैसे। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 10-15-20 साल तो हम चाहते हैं मुझे। कुछ नहीं किया। कितने कमा लेते हैं, एक गुजारे क्या चलता है, कुछ भी नहीं देता है। ओए एक होटल में काम कर रहा है, पोछा बर्तन करे आके 100 रुपये मिलते हैं बस। 100 रुपये में क्या अब ऐसे कि कोई बेटा ऐसा है अजीब इंसान कि कुछ नहीं जैसा चलता है गुजारा जैसे चलाता है सरकार। हम 20 साल लोग कौन चलाएगा, अपने खुद ही काट रहे हैं। कुछ नहीं, पानी टैंकर से आता है और टट्टी बाथरूम जाते हैं यार जंगल में कहीं शौचालय वौचालय शौचालय वहाँ है, डिब्बा रखा है। मतलब गाड़ी रखी है, उसमें 1 रुपया लगता है रोज जाने का। अगर दिन में 3 बार जाओगे तो 3 रुपये लगते हैं। पानी की क्या है? पानी तो जल बोर्ड से लाते हैं ना, बाहर से। बाहर से जल बोर्ड नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है तो उससे लेके आते हैं, साइकिल से, डिब्बे से उठा के, हाथ से। मतलब यहाँ से आपको जाना पड़ता है भरने पास। जल्दी भर का काम चल रहा है। बरसात के टाइम में सबके टाइम में अपना कमरा बंद कर लिया और चूल्हा जलाते हैं यहाँ से। नमस्ते भैया, मेरा नाम आलोक है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश जी, नमस्ते। तो हम लोग यहाँ पे आपने देखा अभी हम लोग अलग अलग घर में भी गए थे, तो आप बताइए आप लोग यहाँ पे मतलब कितने लोग हैं आपके परिवार में, पूरे कुल मिलाकर? मेरे परिवार में 7 लोग हैं, 7 लोग हैं। 5 बच्चे। 5 बता बताइए कि आप करते क्या हैं? मतलब मैं कोठी में काम करता हूँ, हाउस वर्कर। अच्छा, हाउस बॉय काम करते हैं, तो जो कमाई होती है उससे मतलब ठीक ठाक काम हो जाता है घर का? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो बिल्कुल कुछ बचा नहीं पाते और ज़्यादा। और अब आप बताइए कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे मौसम होते हैं, जैसे कहते हैं एक ठंडे का मौसम आता है, एक आती है गर्मी, घर में पंखे चलना बहुत ज़रूरी है, पंखों में भी गुजारा नहीं होता है। दिल्ली में जो गर्मी है उसमें नहीं होता है। एक है हमारा बारिश का मौसम, बहुत ख़राब बारिश होती है, तो घर में पानी टपकता होगा, बिल्कुल छत से टपकती है, तो आप लोग मतलब वो कैसे आप लोग कुछ कर नहीं पाते? आप काम की चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल छत नाम की चीज़ ही नहीं है। कंडीशन में सब गिरी हुई है। अच्छा, मतलब आप लोग वो पानी गिरती है तो आप लोग बाल्टी वाल्टी लगा के मतलब वैसे मतलब रोकते हो किसी को? रोकते हैं किसी तरह से, तो अपने घर में रहते हैं। अच्छा, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा। सर में छूट बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 तो जो भी है महिला, उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके अभी इलाज चल रहा है। दवाई करा दी अब उस दिन से फिर तो अभी ऐसे इलाज नहीं चल रही है, इलाज नहीं चलने का कारण पैसे नहीं कह सकते, दवाई कराई डॉक्टर ने तो मतलब पैसों की कमी की वजह से इलाज रुकी हुई है, हालत कंडीशन खराब है। आप देख सकते हैं कि वो बोल भी नहीं सकती। It's really a disgrace and a fact that such things are happening still in our society,
It's time we shake our heads and move ahead. Thank you.